हम अब दानियल का पुस्तक से एक दो वचन पढ़ेंगे। दानियल बहुशब्दता का पुस्तक 7वां अध्याय के 13 और 14 वचन हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ डैनियल द प्रॉफिट चैप्टर 13 एंड 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, there came on one like a son of man, and he came to the Ancient of Days and was presented before him. बहुत महिमामय एक तस्वीर दानियल में दर्शन में देखा। मनुष्य के पुत्र के समान कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। जय पाकर मारे हुओं में से जी उठकर शैतान को पूरा पूरा पराजित कर परमेश्वर का पुत्र बादलों से होकर पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठने के लिए जा रहा है। The Son of God, having defeated death and grave and the devil, having raised himself up from the dead and having passed through the clouds, is approaching the throne of God the Father. പാതാളത്തെയും മരണത്തെയും ജയിച്ചടക്കിയതിന് ശേഷം, സാത്താനെ പരിപൂർണമായി തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് മേഘങ്ങളിൽ കൂടെ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്ന അതിമഹനീയമായ ദർശനമത്രേ ദാവീദ് കണ്ടത്। മനുഷ്യ പുത്രനെ സദൃശ്യൻ അയവൻ। तब उसकी ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। And to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations and languages should serve him. ऐसा अधिकार दिया गया, ऐसा सामर्थ्य दिया गया, ऐसा प्रभुता उनको दिया गया कि पृथ्वी के सारे लोग, सारे जाति के, सारे वंश के लोग उसके अधीन बने रहे और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। And his dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. Amen. അവന് അങ്ങനെയുള്ള അധികാരവും അങ്ങനെയുള്ള മഹത്വവും അങ്ങനെയുള്ള ബലവും നൽകി ലോകത്തിലെ സകല ജാതികളും വംശങ്ങളും അവൻ അടിമപ്പെട്ടിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിന് ഒരു കാലത്തും അന്തം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു। ഇവനത്രേ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രനായി തീർന്നവൻ। ഹല്ലേലൂയ! അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യപുത്രനെ ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതിന് യുഗത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ദൈവം ജനങ്ങളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു, കുടുംബങ്ങളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു, ദൈവജനത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു, പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ ദൈവജനത്തെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. To prepare the way for the Son of God to appear as the Son of Man. God has been working through individuals and then families and through a nation with the help of the prophets and judges and anointed kings. Now we see the culmination here. परमेश्वर के महान योजना उत्पत्ति के पहले अध्याय से होकर जब उत्पत्ति में यीशु ने कहा स्त्री का संतान आएगा, शैतान का सर फोड़ने वाला, the son of the woman would crush the head of Satan. And in order to usher in the Son of Man into this world, God had to prepare ground. Hallelujah! अभी उसका पुनरागमन के लिए भी
वो हमें तैयार कर रहा है। If for the first advent God had to prepare individuals and families and a nation, how much more He is interested to prepare the church of God, individual living stones of that magnificent house of God. Hallelujah. And beautiful families which are extensions and integral parts of the heavenly family. यीशु के पुनरागमन के लिए वो कितना ज्यादा तैयार करेगा व्यक्तियों को, परिवारों को, कलीसियाओं को। जैसे यीशु पहले ये जगत में इंसान बनकर आने के लिए, उद्धारक के रूप में आने के लिए, ऐसा उसने वातावरण बनाया, तैयार किया। जैसे यूनानियम से हम आगे बढ़ने के पहले ये सुंदर तस्वीर हमारे सामने दिखाया गया। बहुत सारा बड़ा लंबा चौड़ा भाषण के लिए आज अवसर नहीं है। बहुत गहराई की कोई ऐसे वेद को यहां प्रकाशित नहीं किया जाता। There's no place for a lengthy sermon today. There is no sort of revelation of such hidden, deep mysteries, but rather the word is very eloquent, reminding us that God is in the business of preparing ground, preparing His people, perfecting His church for the Son of God to appear for the second time in the clouds. अभी हमें पता चलता है जैसे पहले मरियम के संतान के रूप में या जगत में आने के लिए कैसा परमेश्वर ने तैयारियां किया। आदि से अब वो कलीसिया को तैयार कर रहा है, परमेश्वर को जन को तैयार कर रहा है, परिवारों को तैयार कर रहा है, ताकि हमारा दुल्हा बड़ी खुशी से महिमा के साथ बादलों में प्रकट हो जाए। वैसे हम ये यूनानियम के पुस्तक को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार में चले जाते हैं। We start looking into the New Testament books. जैसा हमने पहले अपने आप को स्मरण दिलाया, लंबा चौड़ा भाषण के लिए कोई जरूरी नहीं है और बहुत ऐसी गहराई की एक गुप्त बात की चर्चा भी नहीं हो रहा है। अनेक वचन हम पढ़ेंगे। We keep reading verses as they have been scribbled down, लिखे रखा है, हम पढ़ेंगे। उसके ऊपर से लंबे लंबे भाषण नहीं सुनाया जाएगा, लेकिन हम पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का हृदय की बात और परमेश्वर क्या तैयारियां कर रहा है और परमेश्वर का चाहत हमसे क्या है और क्यों है, ये बात हम वचन से देखकर आगे बढ़ेंगे। So in Matthew chapter 1, 24-25, मत्ती का सुसमाचार पहले अध्याय का 24-25 हम पढ़ते हैं। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। एक परिवार तैयार किया गया। पहले मरियम से बात हुआ। मरियम ने कहा, मैं तेरी दासी हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, उसके हित के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए। Mary would readily accept the counsel of the Lord that came through the angel, that I am the Lord's servant, that it be unto me as the Lord desires. उसके हित के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए तैयार। लेकिन यूसुफ के दिल में अनेक संदेह था। बहुत धर्मी पुरुष था, वो बहुत अच्छा इंसान था, दयालु भी था। वो नहीं चाहता था कि एक लड़की का जीवन उसके कारण बर्बाद हो जाए या लोग उसको पथराव करे या उसकी निंदा की जाए। उसके लिए चुपचाप उसको छोड़ने का वो विचार करता था, सोचता था। तब परमेश्वर दूत के द्वारा
उससे बात करता और कहता कि डरो मत, तू उसको अपना ले, अपनी पत्नी को अपना ले। उसने वही सही किया और उसको छुआ नहीं जब तक यीशु का जन्म नहीं हुआ, ताकि दुनिया को ऐसा बोलने का अवसर भी नहीं मिले। परमेश्वर का पवित्र संतान का उत्पन्न होने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए, उसको मिस्र देश में ले जाने के लिए, वहां से लौटाने के लिए, सारे प्रबंध कराने के लिए उसको यूसुफ समान एक व्यक्ति का जरूरत था। Dearly beloved, no one plays an insignificant role in the church of God or in his faith walk. हमारे मसीही जीवन में, विश्वास के चाल चलन में और कलीसिया में जो भी सेवा हम करता है वो छोटा नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। यूसुफ के बारे में बड़े बड़े भाषण हमने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन इतना महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी उसके कंधे पर था और उसने उसको इतने भरोसेमंद होकर उसको निभाया। How faithful Joseph was in his calling. Though we may not praise him to the skies, though we may not preach a lot about him, what a great responsibility was laid on his shoulders, and what a great contribution he made in his capacity. Hallelujah. जैसे उसको बुलाहटे जिस स्थान पे प्रभु ने उसको खड़ा किया, वहां खड़े रहकर इतने महान योगदान, what a great contribution came from Joseph. Hallelujah. इसलिए परिवार तैयार किया जा रहा है। यहां यीशु का जन्म लेने के लिए एक यूसुफ, एक मरियम तैयार किया जाना अवश्य था। आगे बढ़ते हैं, 5वें अध्याय में चले जाते हैं। इसको 5वें अध्याय में जाकर हम 48वां वचन पढ़ते हैं। वी रीड 48। यीशु कहता, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा पिताजी स्वर्गीय परम पिता, हालेलुया, वह अति पवित्र है और सिद्ध है। यीशु कहता, पिता के समान पुत्र को तैयार करने के लिए है। हालेलुया, यीशु जगत में आया, पिता के योग्य संतानों को तैयार करने के लिए यीशु जगत में आया। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता मांगता है। He wants our cooperation, our partnership in raising up such a generation, in building our lives up, and in shaping the congregations. इसके लिए यीशु कहता, पिता सिद्ध है, he is perfect. So his desire is that his children be perfect, as to be fitting children. Hallelujah. उसके योग्य संतान बन जाए, वो उसका हृदय का आग्रह है। हम आगे जाते हैं, वचन पढ़ के हम आगे जाएंगे। उसका 11वां अध्याय में चले जाते हैं और उसका 27वां वचन हम पढ़ते हैं। We need to just read these verses. मत्ती 11:27। So in Matthew chapter 11:27, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल प्रभु, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. कितनी सुंदर बात है। पिता को उसका गोद में बैठने वाला पुत्र ही जानता है, और पुत्र उसको पूरा पूरा जानता है, इतना तक कि पिता और पुत्र एक ही है। The Son who is seated in the bosom of the Father
only knows the Father fully and completely. So much so, as he would say, I and my Father are one. Hallelujah. और परमेश्वर के हृदय का आग्रह देखो, यीशु के हृदय का आग्रह देखो। परमेश्वर का पुत्र पिताजी को, हमें पिताजी का परिचय हमें दिलाना चाहते। Jesus the Son would love to reveal the Father to us so that we may know him just as much as the Son knows him. No small thing, no small thing. That is why these vessels have to be prepared. That is why these lives have to be built up. That is why our families will have to be shaped after his image. That is why the congregations will have to be perfected. That we know the Father as much as the Son knew him or knows him. പുത്രൻ മാത്രം, പിതാവിന്റെ മടിയിലിരുന്ന പുത്രൻ മാത്രമേ പിതാവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ പുത്രൻ പറയുന്നു, അവൻ ആർക്കൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുവോ അവരും പിതാവിനെ അതുപോലെ അറിയും. ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു എന്ന് പറവാൻ മാത്രം, അത്രമാത്രം പിതാവിനെ അറിഞ്ഞ യേശു കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം, അവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ നാം അവൻ പിതാവായ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതുപോലെ നാമും അറിയണം എന്നുള്ളതത്രേ. പിതാവ് പുത്രനെ അറിഞ്ഞതുപോലെ, പുത്രൻ പിതാവിനെ അറിഞ്ഞതുപോലെ നാം നമ്മുടെ രക്ഷിതാവിനെ അറിയുവാൻ, നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, നാം ഒരുക്കമുള്ളവരായി തീരണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. That is why he continues to build our lives up. इसलिए प्रभु हमें बना रहा है, हालेलुया, उतना पहचान, इतना जानकारी पिता को ऐसा जानने के लिए, पुत्र को ऐसा जानने के लिए, जैसा पिता पुत्र को जानता और जैसा पुत्र पिता को जानता, वैसा परमेश्वर की अद्भुत कृपा से हम भी पुत्र को जाने और पिताजी को जाने। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम उसका 13वां अध्याय से 11वां वचन पढ़ते हैं। Chapter 13 Matthew and 11th verse. उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, दुनिया वालों का नहीं, लेकिन तुमको दी गई है। स्वर्गीय राज्य के भेद को समझने के लिए, हालेलुया, प्रभु हमें तैयार करना चाहता है। He prepares us. He builds our families up and our congregations up so that we may know the mysteries of the heavenly kingdom. It has been given to you to know the secrets of the kingdom of heaven, which remains hidden to the world and to the worldly. संसार के लोगों के लिए नहीं है, दुनिया वाले के लिए नहीं है। परमेश्वर के संतान को इस स्वर्गीय भेद को वो प्रकाशित करके देना चाहता। Man, as we reminded ourselves, is not to harass us, it is not to take us to task, but rather in order to bless us with such heavenly blessings, with such revelations of glorious mysteries. हमें परेशान करने के लिए नहीं, हमसे ऐसा कठिन काम कराने के लिए नहीं, जुआरे क्रम और खंदा तोड़ने के लिए नहीं। प्रभु हमें तैयार कर रहा है ऐसे स्वर्गीय भेद को समझने के लिए, हमारी समझदारी खोल दिए जाए, ये परिवेश प्रकृति का आग्रह है। We should be more than enthused about it. We should be more than encouraged and inspired about it. Because of this, hallelujah, हम उत्तेजित होना अवश्य है, हमें इतना उत्साह बढ़ना चाहिए। ये कठिन काम नहीं है, प्रभु हमें तैयार कर रहा है, स्वर्गीय वेद को प्रकाशित कर कर देना वो चाहता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 16वां अध्याय से 18-19 पढ़ता। In Matthew 16, 18, 19, और मैं भी तुमसे कहता हूं कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अथोलों के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। Peter, I'm in the business of preparing you, building you up so that I can hand you over the keys of the kingdom of heaven. स्वर्ग राज्य की कुंजियां देने के लिए
प्रभु कुछ लोगों को तैयार करना चाहता कि यीशु के नाम में परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार से अभिषेक की पूर्णता में जो वो बांधेगा वो हमेशा के लिए बांध जाए, जो वो खोलेगा वो खुला रहे। God is looking for people. He is building lives. He said, I will build my church. God is building a people of power and of glory. परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है। Amen. It is in the final stages of perfection now. उसकी पूर्णता के अंतिम घड़ी में आ गया है, अंतिम चरण में हम आ गया है। वो हमें बनाना चाहता है, वो हमें कुंजियां देकर हमें जिम्मेदार ठहराना चाहता कि हम अंधकार की शक्तियों को सब बांध ले। ऐसे परमेश्वर के जन के ऊपर के बंधन को हम खोल दे। इतना अधिकार और अभिषेक देने के लिए वो तैयार करना चाहता। ये परमेश्वर के हृदय का आग्रह है, इरादा है। अब वहां से भी आगे बढ़ता, और वहां से आगे बढ़कर हम 25वें अध्याय से 34 पढ़ता। So in Matthew chapter 25, 34th verse, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, ये मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. पृथ्वी के नींव डालने से ही वो ऐसा एक राज्य की तैयारी करते आया है। Even as he laid the foundation of this earth, he started preparing beautiful mansions for us and a kingdom for us. And he wants to make us worthy of that kingdom. Hallelujah. वो राज्य के योग्य बनाने पर है। वो स्वर्गीय राज्य के नागरिक बने रहने के लिए वो हमें तैयार करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हमें यह आह्वान मिलता, इसलिए हम ये शिक्षा पाता, इसलिए नहीं कि बहुत गहरी बात है जो हम नहीं समझता। वचन पढ़ने से सारे चीज हमें याद आता। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा आएगा, वो याद दिलाएगा, जो भी बात मैंने तुझे सिखाया है उसका वो याद दिलाएगा। When the Holy Spirit comes, he will remind you of everything that I taught you. That's exactly what's happening as we go through the pages of the Holy Book. हमें याद दिलाया जा रहा है परमेश्वर की योजना और उद्देश्य है। This is the purpose and plan of God concerning us, to make us worthy citizens of this great kingdom that is being prepared and perfected from the beginning of time. समय के आरंभ से, युगों के आरंभ से वो इसको तैयार कर रहा है। This is not a second thought of God. ये बाद में उसके हृदय में आया एक आग्रह नहीं है। उसके बाद हम मरकुस में नजर डालता। मरकुस का सुसमाचार से की वचन हम पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 35वां वचन हम पढ़ते हैं। सेंट मार्क चैप्टर 3, 35th वर्स। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। For whosoever does the will of God, he is my brother and sister and mother. Jesus is not the only begotten now. यीशु वो एकलौता बेटा नहीं है, अभी वो पौलौटा है। Jesus is the firstborn in the family of God now. Man, having identified with his brethren, he is delighted to be known as the big brother. वो बड़ा भाई बनना चाहता है, इसलिए he is looking out for brothers and sisters, mothers and fathers, hallelujah, who will do the will of the Father. इधर परमेश्वर के हित को पूरा करने वाला, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग को वो ढूंढता है। ऐसे लोगों को वो तैयार कर रहा है कि बड़ी खुशी से और बड़े गौरव से वो कह सकते कि ये मेरा भाई है, वो लज्जित नहीं होगा। यीशु ने कहा मैं नहीं ले जाऊंगा, I will not be ashamed of you in my father's kingdom.
Hallelujah. That is why He wants us to be prepared, our families to be so built up, our church to be so perfected. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് അത്രേ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പണിവാൻ ആഹ്വാനം തരുന്നത്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ കെട്ടുപണി ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സഭകളെ പൂർണ്ണതയുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവനിപ്പോൾ ഏകജാതനല്ല, അവൻ ആദിജാതനത്രേ. മാൻ, ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആദിജാതനായവൻ സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും അവൻ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയത്രേ. അവന് യോഗ്യരായ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. Hallelujah. God's word is challenging us today to surrender our lives so that the Holy Spirit can perfect our lives. Hallelujah. अपने आप को समर्पण करने के लिए, ताकि पवित्र आत्मा में तैयार करे, सिद्ध करे, उसके लिए हमें आह्वान मिल रहा है. हम आगे बढ़ते हैं. हम अब यूहन्ना का सुसमाचार से कुछ वचन पढ़ेंगे. We move on to Gospel according to Saint John, starting with the first chapter. पहला अध्याय से यूहन्ना का पहला अध्याय का 12-13 पढ़ते हैं. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. Power to become children of God. Hallelujah. सिर्फ उद्धार पाने के लिए नहीं है, यीशु के भाई और बहन बनकर, हालेलुया, उसके समान बनने का अधिकार और सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया. He has given us the power. Man, he has given us the right to become His brothers and sisters, just like Jesus. Not just to be forgiven of our sins, but rather to identify with the Son, even our big brother, who were born not of the blood, not of the will of the flesh, not of the will of man, but of God. ऐसे संतान शरीर की इच्छा से नहीं, लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए. अगर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो परमेश्वर का फौलौटा का जैसा हमें बनना भी है. इसलिए परमेश्वर हमें बनाना चाहता. इसलिए परमेश्वर हमें ये वचनों के द्वारा और एक बार उसको उद्देश्य को प्रकाशित करता. That is why God is revealing His heart's desire through these verses. If you're born of God, we have to be like the firstborn, even Jesus Christ, our blessed Lord. That is His heart's desire and His eternal plan. उसका 5वें अध्याय में चले जाते हैं. उसका 5वें अध्याय में जाकर हम 30वां वचन पढ़ते हैं. Chapter 5, 30th verse. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं. मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वालों की इच्छा चाहता हूं. I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is just because I seek not mine own will, but the will of Him who sent me. यीशु कहता, मैं अपने आप कुछ नहीं करता. इसलिए प्रभु ने इच्छा था कि आप अपना मर्जी से कुछ करें. इसलिए प्रभु ने इच्छा था कि अपनी इच्छा के अनुसार हम कुछ करते रहे. हमें यीशु कहता, मैं नहीं करता. हम उसके भाई, उसके बहन, हम उसके संतान हैं, हम भी नहीं करेंगे. इसलिए कहते, परमेश्वर के हित को पूरा करने के लिए अपने आप को अर्पण करो. ऐसे जीवन को बनाओ, ऐसे परिवार को बांधो, ऐसे कलीसिया को तैयार करो कि अपने मर्जी से कुछ नहीं करेगा. जैसा प्रभु सुनाता वैसा, और जैसा प्रभु अगुवाई देता वैसा, हालेलुया, हम भी करेंगे. पुत्र के समान जिएंगे, और पुत्र बनने के लिए अधिकार और हक प्रभु ने हमें दिया है. ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ, അവന് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായി തീരുവാൻ അവൻ അധികാരവും യോഗ്യതയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുത്രനെ പോലെ ആകാം. സ്വയമായി ഒന്നും ചെയ്യാതെ, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാതെ, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതെ, യേശു കർത്താവ് ചെയ്തതുപോലെ പിതാവ് പറയുന്നത് കേട്ട, പിതാവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട്, സ്വയമായി ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ, ഒന്നും പറയാതെ
പിതാവിന്റെ ഹിതം പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ ആയിത്തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. वासरे आगे बढ़ते हैं. उसका अगला अध्याय से, छठवां अध्याय से हम पहले 29 पढ़ते हैं. 29 फ्रॉम 6th chapter. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास कर. Jesus answered them, this is the work of God, that you believe in him whom he has sent. पिता परमेश्वर का आग्रह यह है, पिता परमेश्वर का कार्य करने का अर्थ यह है, यीशु पे पूरा पूरा विश्वास कर. यीशु ने जो उपदेश दिया, यीशु ने जो शिक्षा दिया, अभी हम उसको मुंह से सुन लेते हैं, उसका पालन करना यह परमेश्वर का हृदय का आग्रह है. परमेश्वर की सेवा करने का अर्थ है उसका पुत्र का सुनना, उसका पुत्र पर पूरा पूरा विश्वास करना. वहां से आगे बढ़कर हम 44 पढ़ते हैं. द 44th वर्स. कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. This is the plan. This is his desire. He wants to raise us up in glory on the last day, when the long blast of trumpet will be heard. Hallelujah. तुरही की आवाज सुनाई देगा. तब प्रभु चाहता हमारा रूपांतर हो जाए, नहीं तो हम उठाए जाए. कहते उसके लिए पिता ने हमें आकर्षित किया है. यह स्वर्गीय परिवार की बात है. पिता जब तक आकर्षित नहीं करता, कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता, यीशु के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता. दिस इज अ क्लोज निट फैमिली. ये स्वर्गीय परिवार है, बिल्कुल करीब सब रहने वाले परिवार है. ये पिता आकर्षित करता, पुत्र के पास हम जाता और पुत्र का सुनता, पुत्र के ऊपर विश्वास करता. What a blessed family that we belong to. ये स्वर्गीय परिवार के अंग बनने के लिए, उसके योग्य पुत्र और पुत्री बनने के लिए प्रभु में तैयार करना चाहता है, ताकि अंतिम दिन में हम जिलाया जाएगा, नहीं तो हमारा रूपांतर हो पाएगा, ताकि हम बादलों में उसको स्वीकारने के लिए, उसको भेजने के लिए उठाए जाए. That we will be so gloriously raptured to meet him in the sky. Amen. You know, glorified body, that is his desire. That is his intention. उसके बाद हम उसका 10वां अध्याय से पढ़ते हैं. John 10:34-35. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तो ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती. अतः Jesus answered them, is it not written in your law, I said you are gods? And if he called them gods to whom the word of God came, and scripture cannot be broken. Hallelujah. कहता है, जिसके पास वचन भेजा गया था, उनके विषय में पवित्र शास्त्र कहते तुम ईश्वर हो. पिता परमेश्वर के, पवित्र परमेश्वर के रूप सादृश्य में बनाया गया मनुष्य उसके पुत्र के समान, उसके संतान के समान रहना चाहिए, बनना चाहिए. परमेश्वर के हृदय का आग्रह है. इसके लिए उसने वचन भेज दिया. उसका मुंह से वचन सुन के मूसा उसके सामने बैठा तो उसका मुख चमकने लगा. As Moses was listening to such glorious words that came out of God's mouth, his face was radiant. वचन पाए हुए लोगों के विषय में कहते they are gods. And how much more it is concerning us. God's desire is that we act like sons and daughters of the living God, coming closer to Jesus. Amen. यीशु के समान बनना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का हृदय का आग्रह है. बीते हुए दिनों में जिसके लिए वचन भेजा गया उसके विषय में कहते तुम ईश्वर हो. तब जीवता वचन हमारे बीच में देवधारी हो कराया
और वो वचन को हमने स्वीकारा, जिसके कारण हमारा नया जन्म हुआ, तो हमारे विषय में परमेश्वर का चाहत उससे कम नहीं हो सकता। हालेलुया। To be such brothers and sisters to Jesus, यीशु क्रिस्त के ऐसे भाई और बहन बनने के लिए, उसके समान दिखाई देने वाला हम बन जाए, ये परमेश्वर के हृदय का आग्रह है। और हम बनेंगे परमेश्वर की अद्भुत कृपा से। आगे बढ़ता, हम उसका 14वां अध्याय से 9वां वचन पढ़ता। 9th verse of 14th chapter। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? Jesus said to him, have I been with you so long and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Jesus wants us to see the Father. No one has ever seen the Father, but the Son would reveal himself to us. He is the radiance of his glory, the express image of God the Father. पिता परमेश्वर को वो प्रकाशित करना चाहता है। यीशु का चाहता है कि उसके संतान पिता को ऐसा जान ले, जैसे पहले भी हमने सुना था। पिता को हम देखें, जैसे मूसा के विषय में कहा, as seeing the invisible, may we walk as seeing the invisible through Jesus and in Jesus। यीशु में और यीशु के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो अदृश्य है, जैसे देखते हुए चलते ऐसे हम चले, ये परमेश्वर के हृदय का आग्रह है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वहां से हम आगे जाकर 17वां अध्याय में नजर डालता। 17th chapter 20-22। केवल इन्हीं के लिए विनती करता नहीं मैं, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू है हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तुम ही ने मुझे भेजा। दिस इज व्हाई ही वांट्स टू बिल्ड अस अप, जस्ट एज द फादर इज इन द सन and the Son is in the Father, that we may be in them, in the Father and the Son. Hallelujah. Hallelujah. That is what we are being designed for. That is what we are being perfected for. प्रभु हमें ऐसा बनाना चाहता है, ऐसा गहरी रिश्ता पिता और पुत्र के बीच में जो रिश्ता है, वैसा हमारी रिश्ता भी उसके संग बने। इसके लिए यूहन्ना कहता, our fellowship is with the Father and the Son. Hallelujah. हमारा संबंध पिता के साथ और पुत्र के साथ है, ऐसा प्रेरित यूहन्ना कहता। सिर्फ यूहन्ना के विषय में नहीं, हमारे विषय में परमेश्वर का चाहत यह है, और ऊंचाई तक प्रभु हमें पहुंचाना चाहता है। हम आगे बढ़ता, उसका 20वां अध्याय से और एक वचन पढ़ता। 20th chapter 17th verse। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। Look at this. Jesus told her, do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father, but go and tell my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God। रिश्ता बनाया गया। आमीन। यीशु नहीं कहता कि मेरे चेले लोगों को कहो, मेरे दासों को कहो, नहीं, मेरे भाइयों को कहो। हालेलुया। प्रेरित लोग उसका भाई बन गया। They had become his brethren now. They are Jesus' brothers. Tell them, I'm not going to a strange God. I'm going to your Father, who is my Father.
My Father has become truly your Father now. My God has become truly your God now. यीशु कहता, मेरा पिता तुम्हारा पिता ही है। उतनी गहरी रिश्ता, इतने करीब का रिश्ता, ऐसे तुम जानते हो उसको अभी। मेरा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है। This is the blessedness that God wants us to enter. That we, like Joshua, will say, but for me and my household, we will serve the Lord. Man, we will enter into such deep intimacy that Jesus may say, my Father, who is your Father, my God, who is your God. Man, जैसे मैंने कहा, भाषण सुनाने के लिए नहीं हम ये वचन पढ़ता, सिर्फ हम अपने आप को याद दिलाते रहता है कि परमेश्वर इतने अद्भुत, इतने महान बुलाहट से हमें बुलाया, चुन लिया और हमें तैयार कर रहा है। Without even knowing it, we are being prepared. Our families are being built and our churches are being perfected if only we would cooperate and we will count ourselves as co-builders with them. Hallelujah. हम जानते ही नहीं है, फिर भी हम बनाया जा रहा है, हमारा परिवार बांधा जा रहा है, हमारे कलीसिया तैयार किया जा रहा है। अगर हम सहमत दे और यीशु के संग सहकर्मी बनकर बने रहे तो हम कुरिन्दी में नजर डालने से पहले रोमियो में से एक दो वचन पढ़ता हूं। रोमियो का 8वां अध्याय से 14 से पढ़ते हैं, वो क्रम में हम जाएंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। For all who are led by the Spirit of God are sons of God. पहले हमने पढ़ा परमेश्वर का पुत्र बनने का अधिकार हमें दिया है। हम कैसे बनता है? पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाने के लिए हम अपने आप को अर्पण करें तो हम परमेश्वर का पुत्र बनते, यीशु समान बनते जाएंगे। We will not be just servants or just disciples. हम सिर्फ उसके नौकर नहीं बने रहेंगे या चेला बनकर नहीं रहेंगे, पुत्र बनेंगे, यीशु समान बनेंगे। पवित्र आत्मा में तैयार करना चाहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली थी फिर भयभीत हो, परंतु लेप पालकपन की आत्मा मिली है। For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Hallelujah. हमें नौकर बनाने का, दास बनाने की आत्मा नहीं मिला, लेप पालकपन का आत्मा मिला, ताकि हम उसका परिवार का पूरा उसका परिवार का बन जाए। Bonafide children of his family, rightful heirs, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमसे बहुत दूर अपने आप को छिपाने वाला है पिताजी नहीं, डियर फादर, प्यारे पिताजी, अब्बा पिता कहकर बुलाने के लिए लेप पालकपन का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन हैज बीन गिवन टू अस। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें यकीन दिलाता रहता, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता रहता कि हम परमेश्वर की संतान है। सुनो, आत्मा की वाणी सुनो। पवित्र आत्मा कह रहा है पहले से उसने हमें उसके संतानों में गिन लिया है, अभी हम उसके लायक का बनना है। The Spirit Himself bears witness with our spirit, saying that we are indeed the children of God, sons and daughters of the living God. Amen. May we be prepared, may we be built up so as to resemble the Son. പുത്ര के समान बनने के लिए हम तैयार किए जाए। പ്രിയ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത്രയും നാം പ്രാപിച്ചത് ദാസന്മാരായിരിക്കാനല്ല, ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കാനല്ല, യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീർന്ന് ആ കുടുംബത്തിലെ അവൻ മൂത്തപുത്രനും നാം പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായി അവൻ പിതാവിനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ പ്രിയ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ അവകാശം പ്രാപിച്ച്, അതുകൊണ്ട് എത്ര ആത്മാവ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് नाम वास्तवത്തിൽ ദൈവമക്കൾ തന്നെ എന്ന്। वहां से आगे बढ़ते एक वचन और पढ़ते, उसमें से 29वां वचन 29 we read, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो,
ताकि वो बहुत भाइयों में फौलौटा ठहरे. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. बहुत सफाई से कह दिया, वो पौलौटा बनकर रहना चाहता. He wants to be our big brother, and he is counting us as his own brothers and sisters. Hallelujah. इसके लिए आदि से हमें चुन लिया और हमें तैयार कर रहा है. पुत्र के स्वरूप में वो हमें बना रहा है. इसलिए बार 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 हमें ये आह्वान मिल रहा है, ये सलाह दिया जा रहा है कि बनाइए अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ, अपने परिवारों को तैयार कीजिए पवित्र आत्मा के संग. कलीसिया तैयार किए जाए पवित्र आत्मा के साथ. That is why this call comes to us loud and clear. Arise and build our lives with the help of the Holy Ghost. Build our families up with the aid of the Holy Spirit. May the churches be perfected by the Holy Spirit, even as we cooperate. Hallelujah. That he continues to be, gladly continues to be the firstborn, and we be conformed to the image of his son, of the Son of God. हम आगे बढ़ता. अब हम कोरिंथी में जाता. पहली कोरिन्थी 11 अध्याय का पहले 3 पद तक. अभी सिर्फ पढ़ने के लिए समय है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है. This is how he wants our families to be. I want you to understand that the head of every man is Christ. The head of a wife is a husband, and the head of Christ is God. That there will be a ceaseless flow of anointing. Amen. ऐसे अभिषेक की नदी बहते रहे, सर से बहते रहे. जैसे हर कुटुंब का प्रभु परमेश्वर है. Amen. पुरुष का सिर मसीह बनकर रहे, स्त्री का सिर पुरुष बनकर रहे, मसीह का सिर परमेश्वर है. पिताजी के साथ ऐसा संबंध पुत्र के द्वारा और परिवार ऐसा जोड़ दिया गया. So built together will be the families with such close relationship with the Father and the Son and the members of the family. That is the plan of God. परमेश्वर की योजना हमारे लिए यह है. उसके बाद हम 12 अध्याय से 18 से पढ़ते हैं, 18 से 20 तक. 12 का. परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है. यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होता. परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है. As it is, God arranged the members in the body, each one of them as he chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. एक ही शरीर है, अब उसके अलग अलग अंग हैं. तो शरीर पूर्णता पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हर एक अंग को पूर्णता पाना अवश्य है. आमीन. अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी बुलाहट के अनुसार हम पूरा तैयार होना अवश्य है. नहीं तो church cannot be perfected. When I am not perfected, when my family is not perfected, the church at large cannot be perfected. वो यीशु मसीह का देह है. This is the realization that each one of us should have. Hallelujah. ये जानकारी होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि मैं बलहीन हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कैसे भी रहूंगा, कलीसिया को उससे कोई नष्ट नहीं होता. नहीं है. Hallelujah. I'm a member of this body. For this body to be perfected, I need to be perfected. My family needs to be perfected. हम आगे बढ़ते हैं. उसका 15 अध्याय का 48 और 49 पढ़ते हैं. 15 chapter 48-49. जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है. और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे. क्यों?
बांधा जाता, क्यों तैयार किया जाता? जैसे आदम जो मिट्टी का था, उसका स्वरूप को हमने अपनाया था, लेकिन अब हमारी नई सृष्टि हुआ है, आत्मा में हमारी नई सृष्टि हुआ है, हम परमेश्वर के पुत्र के द्वारा नया जन्म पाया, तब हम पुत्र के समान बन जाएंगे, उसके स्वरूप को हम धारण करेंगे। Just as we have borne the image of first Adam, who was of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. स्वर्गीय पुरुष का महिमा को हम धारण करेंगे। आमीन। उसके रूप सादृश्य में हम बन जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हम उसके बाद दूसरी कुरिन्थी में जाता, तीसरे अध्याय का 18 पढ़ता। परंतु हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप उस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। We all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Hallelujah. This comes from the Lord who is the Spirit. परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, उसके द्वारा ये रूपांतर होता जा रहा है हम में, परिवारों में, कलीसियाओं में, अंश अंश में महिमा बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम है, इसके लिए हम अपने आप को अर्पण करना चाहिए। इसलिए ये आह्वान हमारे कानों में आ पड़ी है। हम आगे बढ़ता, 5वें अध्याय से पढ़ता, 17 ऑनवर्ड्स। इसलिए यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं होगी, सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। Look at this. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. इतने महान एक सेवा प्रभु ने हमें सौंप दिया, the ministry of reconciliation, which Jesus started. It has been handed over to us. मेल मिलाप की जो सेवा यीशु ने जो शुरू किया, हमारा मेल मिलाप कराया परमेश्वर के साथ, और वो सेवा हमें सौंप दी है। हम उसके जगह पे खड़े होकर और लोगों से अनुरोध करता हूं that we keep calling the world to repentance and reconciliation with the Father. We are ambassadors for Christ. 20वां वचन। इसलिए मसीह के राजदूत हैं। प्रभु हमें राजदूत के रूप में नियुक्त करना चाहता हूं। Hallelujah. That is why this preparation, that is why this building up, that is why this perfecting. Hallelujah. इसलिए ताकि हम उसका एम्बेसडर बन जाए, राजदूत बन जाए, और उसकी ओर से निवेदन करे दुनिया से कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। अर्थात whatever Jesus started, we continue with. Hallelujah. यीशु ने जो शुरू किया, उसको अंतिम तक हम ले जाएंगे परमेश्वर की अद्भुत कृपा से, उसके राजदूत बनकर। I'm afraid we do not have much time even to read through the verses. We will try our level best. हम गलाती के 3 अध्याय का 29 पढ़ते हैं। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। If you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. इसलिए हम शुरुआत में अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा उसके विषय में सीख के आया, उसका वारिस प्रभु हमें बनाना चाहता, that we may inherit all those blessings on the basis of God's covenant with Abraham. Amen. ये सारे आशीष हमें दिलाना चाहता, वो उसका वारिस प्रभु हमें बनाना चाहता। इसके लिए इन बर्तनों को प्रभु तैयार कर रहा है। That is why he is cleansing and perfecting these vessels, that it may be able to hold such manifold blessings. उसका 14 अध्याय का 6 और 7। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो अब्बा है पिता कहकर पुकारता, हमारे हृदय में भेजा है। He has sent the spirit of his son into our hearts, crying, Abba, Father. यीशु में जो पवित्र आत्मा वास किया, वही आत्मा हम में वास करता, और यीशु के पिताजी के साथ जो रिश्ता है वही रिश्ता हमें
हमारा भी बनाया पिता के साथ, ताकि हम भी उसको प्रिय पिता, अब्बा पिता कहकर बुला सकता है। यू नो लॉन्गर ए स्लेव, तुम दास नहीं है परंतु पुत्र है। हालेलुया। यू नो लॉन्गर ए स्लेव बट ए सन, एंड इफ ए सन देन एन हेयर थ्रू गॉड। आमीन। परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है, पुत्र है, वारिस है। इसके लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है। हम आगे बढ़ता, हमें इफिसियों में जाना है। इफिसियों पे भी बहुत सारा वचन पढ़ना है। हम बहुत जल्दी पढ़ते हैं। पहले अध्याय का 11वां, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। हालेलुया। वी हैव बीन प्रीडिस्टाइन्ड इन हिम अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ हिम हु वर्क्स एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज काउंसिल। उसके हित के अनुसार सब कुछ करने वाला, परमेश्वर के हित के अनुसार। आमीन। प्रभु ने हमें चुन लिया मीरास बनाने के लिए, that we may inherit all those blessings, amen, for which he had predestined us according to his blessed purpose. Hallelujah. उसके हित के अनुसार प्रभु ने हमें ठहराया है, वारिस बनने के लिए है। 13वां वचन में हमें ऐसा पढ़ता है कि और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। आमीन। वी हैव बीन सील्ड विद द प्रॉमिस्ड होली स्पिरिट। वायदा किया गया पवित्र आत्मा से, छापा लगाकर, छाप लगाकर। आमीन। പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മെ അവകാശികളാക്കി തീർക്കുവാൻ അവൻ അനാദി മുതൽ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവന് പുത്രനോട് സദൃശ്യരാകുവാൻ അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നിറവോടെ പ്രാപിപ്പാൻ നാം അർഹരും യോഗ്യരുമായി തീരേണ്ടതിന്, അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന് അത്രേ അവൻ നമ്മെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരുങ്ങുവാൻ നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. उसके बाद हम 22वां वचन पढ़ते उसका, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church. Amen. पुत्र को सब कुछ दिया, सबका अधिकारी बनाया, सारे सामर्थ्य दिया, और पुत्र को कलीसिया के लिए दान में दिया. The Son has been gifted to the church. Hallelujah. Which is his body, the fullness of him who fills all in all. कलीसिया उसका देह है, इसलिए देह का रूपांतर होना अवश्य है, उसको परफेक्ट बनाना अवश्य है. उसकी परिपूर्णता, यीशु क्रिस्त की परिपूर्णता मुझ में, परिवारों में, कलीसिया में प्रकट किए जाए. आमीन. ये परमेश्वर का हृदय का आग्रह और इच्छा है. हम आगे बढ़ना, पास सम्मान करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और आप लोग जानते भी हैं सब कुछ. 14 अध्याय का 4 से पढ़ता, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाएंगे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, सबके एक ही परमेश्वर और पिता, सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में एक ही है. प्रभु में ऐसे बनाना चाहता, सो क्लोजली इंटीग्रेटेड, ऐसा जीवन, ऐसा परिवार, ऐसे कलीसिया, पिता परमेश्वर के साथ, पुत्र के साथ, एक दूसरे के साथ. हालेलुया. ऐसे रिश्ता, ऐसे गहरी रिश्ता एक ही आत्मा में बन जाए, तैयार किए जाए, सिद्धता पाए. तो 13 से हम बढ़ते, until we all attain to the unity of the faith and knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. इसके लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है कि परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक बन जाए और एक सिद्ध मनुष्य बन जाए, मसीह के पूरे डील डाउल तक बढ़ जाए. To the full stature of Jesus Christ. Amen. That is his design. उसके लिए प्रभु ने हमें तैयार किया है. कृपा की कुछ बूंद पाने के लिए नहीं, बिल्कुल यीशु क्रिस्त समान. Amen. To the same stature of Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതുപോലെ വളരുവാൻ, അതേ വലിപ്പം പ്രാപിപ്പാൻ, അതേ ഔന്നിത്യം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നത്രേ നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത്. अभी हम बाकी सब भाग है वो आप पढ़ लेना. फिलिपियों का 2 अध्याय का 5 में ऐसे पढ़ते हैं कि
इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी हो रहे हैं। और उसके कहते तू सहभागी हो, और पौलुस जैसे यीशु क्रिस्त के सहभागी है, हम भी यीशु के सहभागी बनकर सेवा करते हैं, बांधकाम करते हैं। हालेलुया। हम बांधते हैं, हम बटोरते हैं। तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं 20-21, तुम्हारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हर एक उद्धारकर्ता प्रभु, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहा है, उसके लिए प्रभु हमें तैयार कर रहे हैं, that we may eagerly look for his appearance in the sky, perfected by the Holy Ghost। पवित्र आत्मा के द्वारा सिद्ध किया गया एक कलीसिया बड़ी खुशी और आनंद से उसके पुनरागमन का बाट जोते रहे, उसके लिए वो हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया। जो अपनी शक्ति के सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता, हमारे दीनहीन देह को बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल वो बना देगा। He will transform our lowly body to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself। वो सामर्थ्य है और वो तैयार है, वो हमारा रूपांतर कराएगा। Amen। He will transform our lowly bodies to be like his heavenly body at his appearance। Blessed be the name of the Lord। हमारे से आगे बढ़ता हम कुलुस्सियों से कुछ वचन पढ़ना है हमें। पहले अध्याय का 12 से पढ़ना है। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। He has already counted us worthy, he has qualified us to share in the inheritance of the saints in the light। ज्योति में परमेश्वर के संत लोग जो मीरास पाएंगे, उसके सहभागी होने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। That is the calling, that is why we are being perfected, that is why we need to be building our families up। हालेलुया। इसलिए हमारा परिवार ऐसा तैयार किया जाना चाहिए, इसलिए कलीसिया ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जो पवित्र ज्योति में पवित्रों के लिए जो मीरास है, जो प्रतिफल है, वो पूर्णता में पाने के लिए। उसको 25 से हम ऐसे पढ़ता है कि जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना, तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस वेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, पर जब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। ऐसे स्वर्गीय वेद को समझने के लिए और लोगों को सुनाने के लिए, पवित्र वचन ग्रहण करने के लिए है और उसके वेद को समझाने के लिए है, तो वो मैं तैयार करना चाहता हूं जो अब तक दुनिया के लिए, दुनिया वाले के लिए, अनेक लोगों के लिए छिपी रही है। It's remained hidden for the world and the worldly and many others। God has chosen us that we may receive revelation of the word and will pass it on to others। इब्रानी में हम पढ़ते हैं Book of Hebrews chapter 3, 6th verse। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। दिस इज द कॉल। वी आर हिज हाउस होल्ड इंडीड, वी आर हिज हाउस इंडीड, ऑन विच Christ is the faithful owner। We are his house if you hold fast our confidence and our boasting in our hope। ये आशा में हम बने रहे, विश्वास को थामे रहे, तो हम उसके परिवार ही है, हम उसके भवन ही है। हालेलुया। और ये भवन का मालिक है। हम आगे बढ़ता, इसलिए भवन ऐसा तैयार होना चाहिए, ऐसा उसको निर्बंध है। ये उसका भवन है, उसका मालिक है। आमीन। महिमामय भवन, सुंदर महल वो तैयार कर रहा है। पहले पत्रस 4 का 17 में हम ऐसे पढ़ता, 1 Peter 4:17। For it is time for judgment to begin at the household of God, and if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God। कहते परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। तो उनका क्या होता है जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, उल्टा हमारा न्याय किया जाएगा।
नरक में भेजने के लिए नहीं है, प्रतिफल के लिए है। हम लज्जित होंगे नहीं, इसके लिए प्रभु यह आह्वान भेज रहा कि none of us will be ashamed. Man will receive such glorious rewards from it. We will inherit such great inheritance as promised to Abraham and all the saints of the light. ज्योति के परमेश्वर के संतान के लिए और अब्राहम के लिए जो भी वायदा किया वो पूरा मीरास को पूर्णता में पाने के लिए। हालेलुया। प्रभु हमें तैयार करे और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे। दूसरा पत्रस का पहले अध्याय का 4 वचन पढ़कर हम आज का मनन को खत्म करते हैं। 2 Peter 1st chapter 4th verse। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस शराहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। That we may become partakers of the divine nature, having escaped the trap and the deception of the world. Hallelujah। यहाँ के हर तरह की गंदगी से बचकर परमेश्वर का स्वभाव मुझ में और आप में प्रकट हो जाए। That we may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world. Hallelujah। ये नाशवान जगत से, उसके सारे आकर्षण से छुटकारा पाकर ऐसा महिमामय स्वर्गीय स्वभाव को हालेलुया अपनाने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। हम आमीन कहते हैं। अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देते हैं। हे प्रभु, मैं आता, मेरे परिवार के साथ आता, कलीसिया के साथ आता, अर्पण कर देता। प्रभु हमें बना जैसे तूने हमें सुनाया, पवित्र शास्त्र के आरंभ से अंत तक सुनाया। तेरे एक आग्रह और क्यों तो इसे हमें बना रहा, कैसे हमें मीरास बनाना चाहता, वारिस बनाना चाहता, मीरास दिलाना चाहता, कैसे महिमा धारण कराना चाहता, कैसे यीशु समान बनाना चाहता, कैसे अब्बा पिता के साथ ऐसे रिश्ते बनाकर रखना चाहता। हम आमीन कहते प्रभु, आमीन कहते। हमारे सामर्थ्य से नहीं होगा, हमारे मेहनत से नहीं होगा। अपने आप को नम्र बना तेरे हाथ में सौंप देता। We surrender our lives, O Lord, to be built up, to be perfected, as is your desire, so as to inherit all the blessings kept in store for us, that we, our families, our congregations will be vessels of blessing, अनेकों के लिए, हमारे लिए, पीढ़ी पीढ़ियों के लिए। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का सीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत था ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागीदार, अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ हो। जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हमने प्रार्थना का त्याग करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगत की, उन सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के और दुनिया भर के ऐसे लोगों के साथ जो दुख संकट से और परेशानियों से गुजरता, और दुनिया भर के यीशु के संतों के साथ, खास कर पीड़ा सहने वाले हमारे भाई और बहनों के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। सर्वशक्तिमान तेजोमय करुणा में परमेश्वर आपके साथ बने रहे, हर जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, हिम्मत दे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे। यीशु के नाम में आमीन और आमीन। May the gracious Lord be with you all, give you peace, meet every need of yours according to his riches in glory, keep you in perfect health, soundness of mind, glad and rejoicing in the Lord. In Jesus' name, amen. God bless. और एक बार में सबों को एक अति पवित्र और आशीषित प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता। Once again, I wish you all a very happy and blessed, glorious Lord's Day. Amen. God bless.